شروع میں آپ دیکھیں گے تب تک کیمرے اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان سے کہنے لگے کیا میں نے آپ کو حضرت ابراہیم اور پرندوں کی حقائق سنائی ہے؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ حضرت ابراہیم بولے اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرا ایمان پختہ ہوگا۔ تب انہیں رب نے حکم دیا 4 پرندے لو اور انہیں خود سے مانوس کر لو۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پرندے کاز، طاؤس، مرغا اور کوا تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں خود سے مانوس کر لیا اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان سب کو ذبح کر کے ان کے دڑ مختلف پہاڑوں پہ الگ الگ چوٹیوں پہ رکھاؤ۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کے دڑوں کو آپس میں ملا بھی دیا اور ان کے دڑوں کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر ان کے سر اپنے ہاتھ میں لے کے وہ ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ پہاڑیاں نظر آتی ہوں اور انہیں پکارتے ہوئے کہا اللہ کی اذان سے چلے آؤ۔ ان کے ٹکڑے خون پر اور ہر چیز آپس میں جڑنے لگی یہاں تک کہ وہ اپنی پچھلی حالت میں واپس آ گئے، بس ان کے سر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں دوبارہ پکارا تو وہ اپنے پنجوں کے بل دوڑے چلے آئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے اور پھر تابتہ کیمرے کہنے لگے اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ سب نے یہ سنا تو ہوگا کہ ہر کہانی میں کوئی سبق ہوتا ہے۔ کیا حضرت ابراہیم ایمان نہیں لائے تھے جو اللہ سے دوبارہ زندہ کرنے کا مظاہرہ دکھانے کو کہا تو سب استغفار کرنے لگے؟ تو پھر تابتہ کیمرے سوال کرتے ہیں تو پھر ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے؟ ابراہیم ایمان کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، وہ پورے دل سے یقین کرنا چاہتے تھے۔ یہ آیت ہمیں عقل استعمال کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ تلاش کرو، جانو اور صحیح راہ پہ غور و فکر کرو، کوشش کرو۔ کیا ایمان نہ لانے والا کوشش کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایمان کے باوجود بھی کہا کہ اے رب مجھے دکھا دے۔ یہ قصہ ہمیں عقل سے کام لینے کا سبق دیتا ہے۔ اور پھر تابتہ کیمرے کہنے لگے ان پرندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات کاز کے بارے میں پیر مولا حضرت کے الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ کافی وقت ہو گیا، آپ سب کو بھی جلدی ہوگی۔ کاز یعنی ہنس ہرس کی علامت ہے۔ ہرس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو انسان اندھا ہوتا ہے اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے، مگر انسان خود کو ہرس میں اندھا کر لے تو وہ رحمت سے محروم ہوگا۔ کاز زمین پہ اور پانی میں موجود ہر چیز کھاتا ہے لیکن زیر زمین چیزیں نہیں کھاتا، اور کاز کی اس لالچ کا سبب اپنے مالک پہ بھروسہ نہ کرنا ہے۔ اور پھر تابتہ کیمرے ایک اور قصہ سناتے ہوئے کہنے لگے پرانے زمانے میں افلاس کا شکار ایک تاجر پکڑا گیا جو چور اور دھوکے باز تھا۔ قاضی نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، مگر وہ چور تب تک باز نہیں آیا اور اس نے قید خانے میں موجود لوگوں کو بھی لوٹ لیا اور ان کی ایک ایک پائی ہتھیار لی۔ تب قیدیوں نے مشورہ کیا اور قاضی کے پاس چلے گئے، اور قاضی نے قیدیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس چور کو قید سے رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چور نے خوش ہونے کے بجائے اعتراض کر لیا قاضی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندان تو میری جنت ہے، میں رہا ہو گیا تو زندگی کیسے گزاروں گا؟ تو قاضی نے اسے بوسے سے لدے ہوئے اونٹ پہ بٹھا دیا اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک ڈنڈورچی کو اس کے ساتھ کر دیا، جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا۔ وہ ڈنڈورچی سارا دن اونٹ پہ بیٹھا بستی میں اعلان کرتا رہا اور وہ شخص بوسے کو بیچ کے ملنے والی رقم کے خواب دیکھتا رہا، جبکہ ڈنڈورچی لوگوں کو بتاتا رہا کہ وہ تاجر کس درجے کا چور اور دھوکے باز انسان ہے۔ اونٹ سوار سوچ رہا تھا کہ شام ہوتے ہی رقم ہاتھ آئے گی۔ جب شام ہوئی تو اونٹ سوار نے کہا بس اب مجھے میرے بوسے کی رقم دے دو۔ تو وہ کہنے لگا وہ پاگل انسان، وہ 10 زبانوں میں اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک دھوکے باز انسان ہوں اور تم مجھ سے قیمت مانگ رہے ہو۔ کون سا بوسا، کون سی رقم؟ ہر کسی نے سن لیا لیکن تجھے سنائی نہیں دیا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کون ڈنڈورچی، کون اونٹ اور کون اونٹ سوار؟ اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس میں بھی ایک سبق پوشیدہ ہے۔ اب سب کے چہروں پہ سوالیہ نشان واضح ہے۔ یہ دنیا ہر کسی کو لوٹ لینے والی دھوکے باز ہے۔ وہ ڈنڈورچی جو اعلان کر رہے ہیں وہ پیغمبر ہیں، جبکہ حریص لوگ اس انسان کی طرح ہیں جو بوسے سے ملنے والی رقم کی لالچ میں نہ سامنے والی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں اعلان سنائی دیتا ہے۔ اس اونٹ سوار کی طرح جن کا دل کالا ہو چکا ہے، وہ پیغمبروں کی آواز نہیں سنتے۔ ان چوروں کو جس چیز سے غرض ہوتی ہے وہ دنیا میں ان کا مقام، ان کا رتبہ اور ان کی دولت ہوتی ہے۔ اسی طرح کے انسانوں سے جب کوئی خطا ہو جائے تو وہ اس کی تلافی کی کوشش میں غلطی سے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اگلے سین میں حسن کی والدہ روتے ہوئے نماز ادا کر رہی تھی اور اللہ سے دعا کرتی ہیں یا میرے اللہ، میری اولاد ہی میری اس مشکل زندگی میں میرا سہارا ہے، میری عمر بھی میرے بچے کو لگا دے، مجھے اس غم سے محفوظ رکھ۔ اگلے سین میں آدھی رات کو حسن آغا اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں یونس ایمرے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ حسن آغا کہنے لگے صبح بخیر قاضی صاحب۔ تو یونس ایمرے سلام کا جواب دے کے کہنے لگے چلو دیکھتے ہیں صبح بخیر ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح حسن آغا اور یونس ایمرے مقتولین کے گھر بیٹھے تھے اور
और उनसे कहने लगे क्या आपको किसी पे शक था? तो वो जवाब देते हैं नहीं। तो यूनुस एमरे कहने लगे क्या कभी उनका किसी से झगड़ा हुआ था या कोई कर्जे का मामला हो या फिर कोई और सबब? तो मकतूलीन के वालिद कहने लगे नहीं, मेरे बेटे तो बस मजदूर थे, वो पत्थर तोड़ते थे और दीवारें बनाते थे। मकतूलीन की वालिदा कहने लगी काजी साहब आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, आपने तो कातिल को पकड़ लिया। तो यूनुस एमरे कहने लगे बिल्कुल अम्मा बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते कि इंसाफ में कोई शुबा रह जाए। और फिर यूनुस एमरे वहाँ से चले गए। अगले सीन में हसन आगा यूनुस एमरे से कहने लगे जनाब काजी साहब आपने जो फैसला दिया था एक बार फिर से साबित हो गया कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। और फिर यूनुस एमरे हसन आगा के साथ उस जगह पे जाते हैं जहाँ उन्होंने कत्ल होते हुए देखा था और वहाँ से उन्हें एक लोहे का टुकड़ा मिलता है। यूनुस एमरे को याद आने लगा कि जब वो सराय में मौजूद थे और एक आदमी ने उनका सामान चोरी किया था तो ये लोहे का टुकड़ा उनके कमरे से वो आदमी चुरा के लेके गया था। और ये सब देख के यूनुस एमरे चौंक के यूनुस एमरे को अंदाजा हो गया कि असल कातिल मिंबर साज हसन नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने उनका सामान चोरी किया था। इतने में हसन आगा उनके पास आके कहने लगे जनाब क्या मकतूलीन की कोई चीज गिरी थी? तो यूनुस एमरे कहने लगे नहीं कातिल की। और इसके बाद यूनुस एमरे अपने घोड़े की तरफ भागते हैं और कहने लगे चलो जल्दी चलो। अगले सीन में मिंबर साज हसन को सजाए मौत देने की तैयारियां की जा रही थी। तो एक शख्स कहने लगा यहाँ क्या हो रहा है? तो दूसरा शख्स उसे कहने लगा क्या तुम नहीं जानते हो आज मिंबर साज हसन को सजा होगी। इतने में एक सिपाही आगे कहने लगा दूर हटो, क्या हो गया? क्या यहाँ कोई खेल हो रहा है? आप सब क्या देख रहे हैं? जाएं जाके अपना काम करें। और फिर एक शख्स मसूद आगा से कहने लगा हमारे शेख ने इस पे एतराज क्यों नहीं किया? तो मसूद आगा कहने लगे किया तो था मगर किसी ने ना सुना और ना किसी ने समझा। तो एक बुजुर्ग कहने लगे हमने तो कभी बरसों में ऐसा होता हुआ नहीं देखा, क्या किस्मत है मिंबर साज हसन की। अगले सीन में हसन कैद खाने में अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो इतने में वहाँ दो सिपाही आते हैं और एक सिपाही दूसरे से कहने लगा जो अल्लाह से ना डरे वो यूं ही इबरत का निशान बनता है। और वो हसन को देख के वापस चले गए। अगले सीन में यूनुस एमरे बाजार में आके हसन आगा से कहने लगे अपने साथ 4 आदमी ले लो और वो तेज और फुर्तीले होने चाहिए, हमें बहुत कुछ करना है और वक्त भी बहुत कम है। तो हसन आगा कहने लगे जनाब माफी चाहता हूँ लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तो यूनुस एमरे कहने लगे वक्त बहुत कम है, मुझसे सवाल ना करो, अपने आदमियों को जल्दी से लेके आओ। और फिर यूनुस एमरे चले गए। तो कासम आगा अपने सिपाहियों से कहने लगे आदम शाहीन जल्दी से दुआन और आब्दी को बुला लाओ। अगले सीन में यूनुस एमरे के पास मुल्ला कासिम आते हैं और उनसे कहने लगे आपको सजा से मुताल्लिक अपने हुक्म पे जरूर यकीन होगा मगर इसके बावजूद क्या हमारे शेख के लिए सख्त अल्फाज निकालना मुनासिब था? तो यूनुस एमरे गुस्से से कहने लगे क्या आपका दिमाग तो ठीक है, आप मेरे पास मेरे दफ्तर में मुझे मेरा काम सिखाने आए हैं? तो मुल्ला कासिम कहने लगे जनाब हरगिज नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये कि हमारे शेख हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं कहते हैं और मैं आपको यही बताने आया था। तो यूनुस एमरे भड़क के कहने लगे आपके शेख हकीकत बयान करते हैं तो क्या काजी अदालत में झूठ बोलता है? ये बेएतमादी क्यों है? मेरे हुक्म पे एतराज क्यों है? तो मुल्ला कासिम कहने लगे जनाब हुक्म तो आपका हक है मगर ये अंदाज मुनासिब नहीं, अगर दोस्तों का दिल एक बार टूट जाए तो फिर बड़ी बड़ी चीजें भी किसी काम नहीं आती। यूनुस एमरे कहने लगे ये रियासत के मामलात हैं, खानका जाके अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें, मेरे पास वक्त कम है और काम ज्यादा। और फिर यूनुस एमरे वहाँ से चले गए। अगले सीन में यूनुस एमरे अपने सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहे थे जबकि दूसरी तरफ शेख ताबतक एमरे के पास उनकी बेटी आती है और कहने लगी बाबा क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? हमारी पूरी बरादरी काजी का फैसला तब्दील करवाना चाहती है, हमारे लोग सर झुकाए चल रहे हैं, क्या आप ये नहीं देख रहे? तो ताबतक एमरे कहने लगे हम भला कौन हैं जो हम काजी का फैसला तब्दील करवाएं? हमसे ऐसी तवक्को रखना हमारे और लोगों के लिए क्या ये मुनासिब है? ना वो काजी के चाहने से मर सकते हैं और ना ताबतक के चाहने से जिंदा रह सकते हैं, जिंदगी और मौत देने वाला तो बस अल्लाह है। तो ताबतक एमरे की बेटी कहने लगी बाबा आपने ठीक कहा मगर काजी हर जगह कह रहे हैं कि यहाँ मेरा हुक्म चलता है, इंसान की अना उसे मुश्किल में डालती है। ताबतक एमरे कहने लगे मैंने ये किया मैंने वो किया, ये सब कहने वाला सुकून से महरूम रहता है, हवा वो काजी हो या कि काजी का हादम हो, इंसान का मुकाम जो भी हो उसे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। अगले सीन में यूनुस एमरे अपने सिपाहियों के साथ एक जगह रुकता है तो उन्हें वहाँ आइनाल नजर आता है। एक सिपाही यूनुस एमरे को आइनाल के बारे में बताने लगा तो यूनुस एमरे कहने लगे वो यहाँ पहाड़ियों में क्या कर रहा है? तो आगा हसन कहने लगे ये पहाड़ियाँ हर किसी से बढ़ के आइनाल की हैं। तो यूनुस एमरे कहने लगे क्या नालिहान से यहाँ तक वो पैदल आया? तो हसन कहने लगा जनाब दरवेश पैदल ही चलते हैं। यूनुस एमरे तंज करते हुए कहने लगे क्या तुम हर पागल इंसान
انسان کو दरवेश कहते हो? तो हसन कहने लगा, काजी साहब आइनाल को हर शख्स जानता है, इसके जाहिर पे ना जाएं, ये गाजी है। यूनुस एमरे हैरत से कहने लगे, क्या ये पागल इंसान गाजी है? तो फिर कोतवाल हसन आइनाल के बारे में यूनुस एमरे को बताने लगे। अगले सीन में यूनुस एमरे उस सराय में जाते हैं जहाँ से उनका माल चोरी हुआ था। तो सराय का मालिक उन्हें खुशामदीद कहता है और कहने लगा, शिकारियों ने हिरन का शिकार किया है, ये आपके शायाने शान रहेगा। यूनुस एमरे कहने लगे, आपका शुक्रिया, हम बस चंद सवाल पूछ के यहाँ से रवाना होंगे। यूनुस एमरे कहने लगे, तुम्हें याद होगा मैं यहाँ ठहरा था और मुझे लूटने वाला चोर भी याद होगा। और फिर सराय के मालिक को वो सारा वाकया याद आता है और वो कहने लगा, आप उसके पीछे भागे थे मगर वो अंधेरे में फरार हुआ था। तो यूनुस एमरे कहने लगे, नहीं, जब उसने मेरे साथ खाना खाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि वही चोर था। और क्या वो मेरे बाद यहाँ आया था? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं, वो नहीं आया, वैसे भी वो 6 महीने बाद आता है। यूनुस एमरे उससे पूछते हैं, वो कौन था और उसका नाम क्या था? क्या तुम्हें उसके गांव का पता है? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं जनाब, मैं नहीं जानता। और इसके बाद यूनुस एमरे वहाँ से चले गए। और यूनुस एमरे को अलविदा करने के बाद सराय का मालिक अपनी बीवी से आके कहने लगा, मुझे जल्दी जाना होगा। तो उसकी बीवी हैरान होके कहने लगी, जनाब आप क्या कह रहे हैं? आधी रात को तो शैतान भी बाहर नहीं निकलता, इतनी रात को आप बाहर जाएंगे? तो वो शख्स कहने लगा, ये तुम्हारा मसला नहीं, मुझे फौरन जाना होगा, तुम्हें वापस आके तफसील बताऊंगा। और फिर वो शख्स भी वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो बाहर पहुंचा तो यूनुस एमरे और उसके सिपाही छुप के उसका इंतजार कर रहे थे। वो शख्स अपने घोड़े पे सवार नामालूम मकाम की तरफ चला गया। और फिर वो एक घर के आगे जाके अपना घोड़ा रोकता है और उस घर में जाके उसी शख्स से मुलाकात करता है जिसने यूनुस एमरे का माल चुराया था। वो सराय के मालिक को देख के कहने लगा, महमूद साहब क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया? जबकि इतने में यूनुस एमरे भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच के जब सराय के मालिक और कातिल को बाहर घोड़ों की आवाज आई तो वो कहने लगा, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? तो सराय का मालिक कहने लगा, गांव वाले होंगे, मेरा ताक़ब नहीं किया गया। इतने में यूनुस एमरे ने दरवाजे पे दस्तक दी तो वो कातिल गुस्से में सराय के मालिक को भी कत्ल करता है। कोतवाल हसन कहने लगा, सिरी दरवाजा खोलो, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। और फिर यूनुस एमरे उन्हें दरवाजा तोड़ने को कहते हैं और वो दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। जबकि सिरी दूसरे दरवाजे से वहाँ से फरार हो गया। सिपाही सिरी को आवाज देते हैं, रुक जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो सिरी अपनी तलवार निकालता है, लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ से यूनुस एमरे आके एक जोरदार मुक्का सिरी के मुंह पे मारते हैं और सिपाही उसे काबू करते हैं। जबकि सिरी यूनुस एमरे से कहने लगा, जनाब मुझे नहीं मालूम था कि आप काजी हैं, अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं काजी को लूट सकता था? मैं जाहिल हूँ, मुझे माफ कर दें, आप तो बहुत अजीम हैं और मैं आपका आजिज खादिम हूँ और मैं एक कमजोर इंसान हूँ। कुरान की कसम मैं अंधा चोरी नहीं करूँगा। तो यूनुस एमरे गुस्से से कहने लगे, क्या तुम कत्ल भी नहीं करोगे? तो सिरी हैरान होके कहने लगा, जनाब मैं एक बुरा चोर हूँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हसन आगा कहने लगे, जनाब ये झूठ बोल रहा है, नदी के किनारे इसी ने 2 लोगों को कत्ल किया। तो सिरी कहने लगा, जनाब मैं आपका सामान लूट के उस तरफ गया था, जबकि नदी तो उस तरफ है। तो यूनुस एमरे उसे दुआत दिखाते हैं और कहने लगे, फिर ये नदी के पास कैसे आई? और फिर यूनुस एमरे उसे गिरफ्तार करके वहाँ से अपने शहर की तरफ जाते हैं। यूनुस एमरे अपने सिपाहियों से कहने लगे, हमें सुबह होने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। अगले सीन में मिंबर साज हसन रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहा था, जबकि उसकी माँ भी अपने घर में जायनमाज पे बैठे हुए अपने बच्चे के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही थी। और वो लगातार कहती रही, ऐ अल्लाह मुझे औलाद का दुख ना देना, ऐ मेरे रब मुझे औलाद का दुख ना देना। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप यूनुस एमरे सीजन 1 की मजीद एपिसोड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग किताब को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।